Okay, so good morning, everyone. Let us start, okay? Good morning, ma'am. Good morning. Okay. So, this is now a continuation of the previous lecture. Okay, so this is the continuation of the previous lecture, which was your traffic engineering, traffic flow characteristics. Okay, traffic flow characteristics. Till now, Yes, ma'am. we have understood what do you understand by the traffic stream, what are the different parameters, okay, that we need to measure, macroscopic, microscopic, this also is cleared. Volume, under macroscopic we have learned what is volume, what are the rate of flow, what is speed, what are the different types of the speeds. Okay, here different types of speed mainly means your average speed, that means your TMS and SMS. Okay, and we have also solved the problem, and we have also learned what do you understand by the PHF. Okay, what does it signifies, this we have learned, and what are the different types of the volume, traffic volume. Okay, and CTMS and SMS is covered. Now this is the continuation. Okay, there are, apart from the time mean speed and space mean speed, there are other types of speeds also. Okay, say for example spot speed. See, it is actually the instantaneous speed of a vehicle at a specified location. Okay, generally it is used for designing of the geometry of the road, geometric design. In your geometric design we are using this kind of speed. Okay, see, instantaneous speed means suppose a vehicle is coming from a particular direction, you are standing beside, you are conducting an engineering, traffic Yes, ma'am. engineering survey, okay, you are standing beside the roadway, and what you are doing, whatever the vehicle comes, with the help of instrument, the instrument which is used for measuring the spot speed is the radar gun, okay, or speed gun. You have just shot, you aim that vehicle. Okay, that vehicle is coming in from opposite direction, you aim that vehicle and you hit the gun. Then what happens, after some time one laser will go, it will reflect back. Okay, and the speed, the spot speed of the vehicle will be shown in that display, in the display of Yes, that radar gun. Okay, so that is the spot speed, that means at a particular instant of time what is the speed of a vehicle. This is not the average speed. Okay, now comes the running speed. Running speed means what? See, if you know this, if you just see this formula, you can easily tell what do you understand with the running speed. Simply, it means your speed of the vehicle. Okay, speed of the vehicle when that vehicle was in running condition. That means, see, sir. in a journey what happens, suppose you have taken an auto. Okay, you have taken an auto, now you are traveling from BBIT to Chadial. Okay, during the journey there may be many times that your auto will get stopped, okay, at certain stopping hall or at certain hauling stoppage and all. Okay, so it will get stopped to carry the passenger. That means in that time your vehicle is not in motion. Okay, but now what we will consider? We will consider what was the speed of your vehicle when it was in moving condition. That means we have to deduct some time. Okay, say for example, when you the distance, suppose distance between Chadial and BBIT is suppose 2 kilometer. Okay, so during that 2 kilometer, what is the total time that you have taken to reach from BBIT to Chadial? Suppose that is your 20 minutes. Okay, so within the 20 minutes, there will be some stop delays, there will be some stoppage, there will be some delays. Okay, so we have to exclude all those things. If your auto was in continuous running motion, it didn't stop anywhere. Okay, it didn't stop anywhere, obviously the time taken to cover that distance will be less or more. If it takes 20 minutes, okay, to cover from BBIT to Chadial, including all the stops and the delays, okay,
Now, in the second case, what happens? Your vehicle is continuous in motion only. It will not stop in any stoppage. Okay. Then obviously you will take less time to cover that distance. Okay. So that time duration when your vehicle was in motion. That means we have to exclude all the stops and the delays. If we divide the length of the journey by that time, will give you the running speed. Is it clear or not? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Wait. So now what do you mean by the journey speed? Oh, why these people are not joining at a time? See, now journey speed is what? When the distance covered, the total length of the journey divided by the total journey time. That means here we will include when your auto was in motion, or as well as when your auto was not in motion condition. That total time we will consider here. Okay, that is the journey speed. Say for example, length is 2 kilometer, 2 kilometer. Okay, here it will be 2, here it will be 2. But the time taken to cover the journey, total journey is suppose 20 minutes. Okay, and inside that 20 minutes, 10 minutes were your stopping time. Okay, suppose your auto was in stop condition. Whenever your auto stops, say for example, in one stoppage it is stopped for 1 minute, in another stoppage it is stopped for 2 minutes, then what is the total stoppage time? Okay, if we minus that stoppage with the total journey time, we will get this one. Okay, this time, that is the time duration when the vehicle was in motion, and this is the total journey time. Here we will include all the stoppages and the delays, and here what we will do, we will subtract all the stoppages and the delays. So this is the main difference. Running speed, that means your vehicle was in running condition, and journey speed, here it will include everything, whether it was running or not running, the total time taken. Okay. Yes, ma'am. Now third parameter, that was the second parameter, speed. Now this is macroscopic. Third parameter is the density. Density means what? It is suppose a stretch of kilometers. So say for example, suppose this is a roadway. Okay, you have considered one stretch of a segment. Suppose this segment is your 1 kilometer. Okay, so what is the density? Means what? The number of vehicles within that 1 kilometer stretch of a road at a particular instant of time gives you the density. That means number of vehicles per kilometer. Okay, so here 3 vehicles are here, so 3 vehicle per kilometer is the density of this road stretch. Okay, so this is the density. Now suppose this is the spacing. Okay, spacing between these 2 vehicles is this much, suppose. Now tell me, if the spacing is more, your density will be less or more? What is the relationship between spacing or the gap? Suppose this is the gap. Actually, this is the gap. Okay, spacing means here head to head distance. This is the spacing. Actually, this is spacing, and this one is the gap. Okay, now tell me, if this spacing is more, so number of vehicles within 1 kilometer stretch will be less or more? If this distance between 2 vehicles is more, then your density will increase or reduce? Will increase or decrease? Ma'am, the density will be less. Yes, density Yes, will ma'am. be less because they are sparsely spaced, right? The distance between, Yes, or the ma'am. gap Decrease. between each vehicle is what? Very more, De- very high. So your More. spacing means spacing increases, so density reduces. Okay. Now if they are Yes, closely ma'am. packed, yes, means more number of vehicles will be lying on this 1 kilometer stretch. That means your density will increase. So this is the relationship between micro and macro. Okay. Your macro is density, and micro is what? As I said, corresponding microscopic parameter of this density is spacing or the space headway. Okay,
space headway, I will denote this as HS, space headway. Okay, so they are indirectly proportional. Okay, so see here, vehicles per unit distance, vehicle per kilometer, or vehicle like that. And with the help of this density also we can classify our roadway. If more is the density, that means its level of service is very less. Okay, if less is the density, that means what happens? Level of service increases. That means the gap between this individual vehicle is more, means what happens? The flow is very high. Okay, since they are moving with a high speed, their number of vehicles crossing that particular section will be more, and also the gap will be very more. Okay, now let us go to the fundamentals. Again we will discuss, okay, in details. See, traffic flow basics. See, for this we should consider our segment should be long, okay, uninterrupted and single lane roadway, no passing, no opposite traffic. Okay, this is for our, these are the fundamental criteria for the traffic flow basics. Okay, now see this diagram, I think you know. Now tell me if what will be the slope. Okay, slope of this line is known as what? What we will call the slope of this distance versus time graph? Slope will give us which parameter? Slope means what? Distance by time, right? D distance Yes, by D distance by time. time. So that is what? Distance by speed time by- is speed, right? So your Yes. this slope means this slope or the gradient. Okay, this slope is nothing but signifies what? What is the speed of that vehicle at a given time or at a given distance. Okay, suppose if you take a point here, then where it is from? If they will ask you, suppose the vehicle is somewhere here, this is actually the trajectory of the vehicle. Okay, suppose a single vehicle is moving, then this line will signify the trajectory or the path. Okay, this is the path of the vehicle. So if they will ask you what is the slope or what is the speed of the vehicle at this particular point, at this particular point means what? At this particular time and at this particular distance. Okay, what will be the slope? What will be the speed? Nothing. The slope at this particular point will give you the speed of that vehicle in this coordinate. Okay. Now see here. Yes, ma'am. Now this what? This each trajectory, each line signifies the trajectory of each vehicle. So these are actually what? These are number of the vehicles moving at a given speed. Okay. So for example, this slope of this line is nothing but the speed of this vehicle. Okay, this is another vehicle, this is again another vehicle. So basically these lines or the trajectory signifies what? These are actually the individual vehicle moving in a given direction, okay, with a given certain speed. Okay, see, trajectory of a vehicle. Okay, now consider, suppose if we cut a slice. Sorry for the interruption. Suppose if we cut a horizontal slice, okay, if we cut a line or if we draw a line in this diagram, okay, so the number of trajectory cutting this line give us what? Actually, this is what? This gives us the number of the vehicles. The number of the trajectory crossing this line is actually the number of vehicle passing a fixed point on the roadway. That means what? Here we have fixed a distance. Distance is this much. Okay. So we have fixed in a roadway. Say for example, in front of your BBIT, we cut a line, same like this only. Okay. That signifies that line is this one. Okay. We are cutting a section on a roadway, and now if we count this, how many trajectory has crossed this line? So we'll give you what? Number of vehicles crossing that section. Okay, clear? Now
व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम? वॉल्यूम को हम लोग क्या डिफाइन किए थे? दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ सेक्शन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 12 बजे से लेकर 1 बजे या 1 बजे से लेकर 2 बजे, राइट? से फॉर एग्जांपल टाइम हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है, ड्यूरेशन। जैसे कि सपोज यहाँ पे है तुम्हारा इस टाइम में हियर t इज इक्वल्स टू सपोज 1 PM, ओके, एंड हियर t इज इक्वल्स टू सपोज 2 PM। मतलब ये x एक्सिस क्या है? दिस इज एक्चुअली द टाइम, राइट? यहाँ पे डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया, ये डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया है, मतलब कि एक कोई भी सेक्शन में डिस्टेंस पे हम लोगों ने सेक्शन को काट दिया है, चौक से ड्रॉ कर दिया है, ओके। अब 1 बजे से लेकर 2 बजे मतलब कि क्या है? यहाँ है तुम्हारा 1, यहाँ है तुम्हारा 2, ओके। नाउ यूजिंग दिस ग्राफ कैन वी गेट द वॉल्यूम? हम लोग वॉल्यूम निकाल पाएंगे? 1 बजे से लेकर 2 बजे कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स इस सेक्शन को क्रॉस किया था, ये वाला सेक्शन को क्रॉस किया था? कितना होगा? तुम लोग देखकर बोलो तो कितना होना चाहिए? देखो ये है एक व्हीकल का ट्रैजेक्टरी, मतलब यहाँ से एक व्हीकल जा रहा है, सो यहाँ पे क्रॉस किया, राइट? सो 1, ये वाला व्हीकल भी यहाँ से जा रहा है, दूसरा वाला व्हीकल 2, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में है 3, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया 4, यहाँ पे क्रॉस किया 5। तो 2 बजे तक सिर्फ ये वाले व्हीकल, मतलब इसने और इसने, सो टोटल हाउ मेनी व्हीकल्स हैव क्रॉस द लाइन फ्रॉम 1 PM to 2 PM? 1 2 3 4 5, so 5 vehicles, okay. So the number of the trajectories crossing this line is actually what? Number of vehicles passing a fixed point on the road, okay. And if we specify our duration कि टाइम कितना है, कितना से लेकर कितना व्हीकल क्रॉस किया, सो इन दिस केस 1 से लेकर 2 कितना बजे हो गया? 1 आवर हो गया। सो 1 आवर में यहाँ पे कितना व्हीकल क्रॉस किया? 1 2 3 4 5 व्हीकल्स। सो वॉल्यूम इज व्हाट? 5 व्हीकल्स पर आवर, ओके, फॉर दिस गिवन कंडीशन। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? So this is called the volume of the flow, okay? कितना vehicles per hour क्रॉस किया, okay? अगर तुमको बोलेगा कि 1 से बजकर 3 बजे तक ये वाला टाइम है, तो क्या करना है? 5 vehicles has crossed the segment from 1 PM to 3 PM, ठीक है। अगर ये वाला अगर 2 के जगह 3 होता है तो कितना होता है? यहाँ पे ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है, मतलब कि 5 आवर्स व्हीकल क्रॉस कर रहा है 2 आवर्स में। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम देन? 1 आवर में कितना क्रॉस करेगा वो हमको देखना है, राइट? तो 5 आवर्स 2 घंटे में 5 व्हीकल्स 2 घंटे में क्रॉस कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1 घंटे में 2.5 होगा, ठीक है। मतलब 2 घंटे में 5 व्हीकल जा रहा है, मतलब 1 घंटे में उसका हाफ जाएगा, मतलब 2.5, या हम लोग 3 पकड़ेंगे इन दैट केस, ओके। सो 3 व्हीकल पर आवर विल बी दैट वॉल्यूम इन दैट केस, ओके। अब क्या करेंगे? नाउ कंसीडर अ वर्टिकल स्लाइस। हॉरिजॉन्टल स्लाइस से हमको क्या निकल आया? हॉरिजॉन्टल स्लाइस में हमने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, ठीक है, और कहा कि उस लाइन को जितना व्हीकल्स ये ट्रैजेक्टरी लाइन क्रॉस करेगा दैट विल गिव यू द वॉल्यूम, ओके, इफ वी स्पेसिफाई द ड्यूरेशन आल्सो, ठीक है। अगर हम ड्यूरेशन टाइम से डिवाइड कर देंगे देन वी विल इजीली गेट द वॉल्यूम। अब बोलो ये वर्टिकल लाइन को जितना ट्रैजेक्टरी लाइन क्रॉस करेगा विल गिव अस व्हिच पैरामीटर, व्हिच मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर? यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोगों ने फिक्स कर दिया, वहां पे एक डिस्टेंस हम लोगों ने फिक्स कर दिया था, राइट, कि एक सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक टाइम में ये नंबर ऑफ, ये एक टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने फिक्स कर दिया, सपोज 12 बजे, ठीक है। यहाँ पे टाइम है तुम्हारा 12 PM, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस इज वेरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ठीक है, वहां पे टाइम वेरी कर रहा था। देन व्हाट वी विल गेट? अगर ये नंबर काउंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? The number of vehicles crossing or the trajectory crossing this vertical slice will give you which parameters? सब बोलो तो थोड़ा बुद्धि लगाकर। यहाँ पे क्या दिया? सपोज यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, मतलब कुछ है, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है तुम्हारा BBIT, सपोज BBIT का डिस्टेंस यहाँ पे था, चढ़ियाल का डिस्टेंस यहाँ पे था, ठीक है। तो BBIT से लेकर चढ़ियाल तक एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम
कितना सारा, ये ट्रैजेक्टरी मतलब क्या है एक्चुअली, द व्हीकल्स ओनली, तो कितना सारा व्हीकल्स है, राइट, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ गिवन डिस्टेंस और Yes, इन अ ma'am. गिवन स्ट्रेच ऑफ द रोडवे। तो उससे हमको कौन सा पैरामीटर निकल आएगा, बोलो। पिछले वाले से वॉल्यूम आया था, तो इससे कौन सा पैरामीटर निकलेगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ गिवन डिस्टेंस, वहां पे था नंबर ऑफ वॉल्यूम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन एज द वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या निकालना, इन अ नंबर ऑफ डेंसिटी निकल आएगा, क्या आएगा, ट्रैफिक डेंसिटी। यस, ट्रैफिक डेंसिटी, कि कितना डेंस है ये वाला, ठीक है। सो तो ये एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में फ्रॉम अ गिवन फॉर अ गिवन डिस्टेंस हाउ मेनी व्हीकल्स आर देयर, ठीक है। सो टोटल नंबर विल गिव यू द डेंसिटी, इफ Yes. वी नो द डिस्टेंस, इफ वी काउंट दिस, देन जितना नंबर है डिवाइड बाय डिस्टेंस कर दो, हमको क्या होगा, व्हीकल डिवाइडेड बाय किलोमीटर विल गिव यू योर density only. So the number of trajectory crossing this line is the number of vehicles on the road at one instant of time, and this gives us the density, ठीक है। तो यही ऐसा ही फंडा है। अब यहां से भी एक, अब आते हैं हम लोग क्या, अब आएंगे हम लोग इन लोग का करस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर में आते हैं, ठीक है। हम बोले थे टाइम हेडवे किसका माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, देखो टाइम है, टाइम से रिलेटेड है, मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम से रिलेटेड है मतलब ये फ्लो के साथ रिलेट होगा, ओके, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। सो ये वॉल्यूम का ऐसे भी याद कर सकते हो, ये वॉल्यूम का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, ठीक है। फर्स्ट दिस इज द टाइम हेडवे, तो कितना दिया है, देखो फॉर्मूला ये है, देखो ये वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है, ओके, वॉल्यूम के साथ ये वाला रिलेटेड है, ट्रैफिक वॉल्यूम के साथ। एंड सी इट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, मतलब कि अगर टाइम हेडवे इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, टाइम हेडवे डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वो कैसे, एनी आइडिया, कुछ आइडिया है कि टाइम, उससे पहले देखते हैं कि टाइम हेडवे क्या है, ओके। सपोज ये वाला एक व्हीकल है, तुम्हारे सामने कोई एक व्हीकल है, ठीक है। सो ये हम तो बोले थे ये इसका ये वाला एज और इसका रियर वाला एज के बीच का डिस्टेंस को हम लोग गैप या क्लियरेंस बोलेंगे, ठीक है। और हेडवे किसको बोलेंगे, हेड टू हेड डिस्टेंस को हेडवे बोलते हैं, ओके। अब ये वाला डिस्टेंस अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है तो इसको टाइम हेडवे बोलते हैं, एंड इफ इट इज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पेस हेडवे या स्पेसिंग, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि Yes. टाइम हेडवे का मतलब क्या है, देखो एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे, सपोज ये वाला सेक्शन बीबीआईटी के सामने तुमने फिर से एक सेक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है। एक व्हीकल, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, दो व्हीकल आ रहा है, एक बस आ रहा है, एक बाइसाइकिल या मतलब कार आ रहा है, ठीक है। तो ये कार आके जब इसको क्रॉस करेगा, सपोज टाइम था उसका t1, ठीक है। अब ये वाला भी आके तो क्रॉस करेगा ना, इसी को तो क्रॉस करके जाएगा, उड़ के तो नहीं जाएगा। अब ये वाला आके जब क्रॉस कर रहा है, सपोज इसका टाइम था t1, इसका टाइम था t2, ठीक है। तो ये जो टाइम गैप है, ये वाला कब क्रॉस किया, फिर उसके कितने देर बाद दूसरा वाला, उसके पीछे वाला जो व्हीकल था ये लाइन को क्रॉस किया, दैट डिफरेंस विल गिव यू द टाइम हेडवे, ठीक है। एंड हियर यहाँ पे Yes, एक कोई रेफरेंस पॉइंट लगाना है, मतलब कि अगर इसका फ्रंट बम्पर कितना बजे यहाँ पे क्रॉस किया, मेजर किया, तो इसका भी फ्रंट बम्पर कितना बजे यहाँ पे क्रॉस किया वही मेजर करना है, ओके। अगर इसका तुम रियर पीछे वाला बम्पर मतलब एक्सेल देख रहे हो कि कितना बजे क्रॉस किया, तो इसका भी पीछे वाला ही देखना है, देखो इधर हेड टू हेड या टेल टू टेल, ठीक है, इसको बोलते हैं हेडवे। अब तुम बोलो अगर ये वाला इन दोनों के बीच का वो जो टाइम गैप बहुत कम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ेगा ना कि घटेगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, एक के बाद एक व्हीकल बहुत जल्दी आ रहा है, तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक तुम काउंट कर रहे थे, तो यहाँ पे देख रहे कि ये टाइम हेड में बहुत कम है, मतलब टाइम बहुत कम है, इन दोनों के बीच का टाइम बहुत कम है, राइट, टाइम इंटरवल बहुत कम है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, हेड में बहुत कम है, जल्दी जल्दी आ रहा है। सो नंबर ऑफ काउंट्स क्या हो जाता है तब, इंक्रीज हो जाएगा, हाँ इंक्रीज हो Increase. जाता है, राइट। अगर नंबर ऑफ काउंट्स इंक्रीज हो जाएगा, घटे ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इंक्रीजिंग, ओके। घटेगा मैम, नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग दिस सेक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग, हाँ ठीक है। तो
काउंट बढ़ेगा मतलब क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ इंक्रीज रहा होगा, है, इंक्रीज तो होगा। तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो काउंट इंक्रीज हो रहा है। तो अब बोलो देखो ये स्पेसिंग घट रहा है, हेडवे टाइम हेडवे घट रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, सो इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसीलिए ये जो फंडा है, सॉरी, ये जो फंडा है ये वाला देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ, ये वाला मतलब एच टी अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कमेगा, सॉरी हाँ उल्टा है, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर कमेगा तो एच टी बढ़ेगा, वैसे ही है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 3600 क्यों दिया है, 3600 इसलिए दिया क्योंकि व्हीकल का ये वॉल्यूम का है, पर आवर में है, और एच टी है हम लोगों ने सेकेंड में लेना है, ओके। इन दिस इक्वेशन एच टी विल बी इन सेकेंड, मतलब यहाँ पे जो भी सेकेंड में होगा वही पर पुट करेंगे, और वी को वॉल्यूम पर आवर में हमको निकालना है, व्हीकल पर आवर में, ठीक है। तो आवर से सेकेंड में कन्वर्ट Yes. करने के लिए हम लोगों ने ये वाला किया है 3600, ओके। ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है, व्हीकल पर आवर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बाय आवर होना चाहिए था, तो बाय आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करना चाहिए था, और यहाँ पे डिवीजन 360 है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए 3600 बाई वी, ओके। अब वैसे ही स्पेसिंग का भी वही है, टाइम हेडवे जैसा है, स्पेसिंग जैसा बढ़ेगा तुम्हारा डेंसिटी कमेगा, ऑब्वियसली तुम दोनों के बीच में बहुत गैप है, स्टूडेंट के बीच में बहुत गैप है, तो एक जगह पर सबको रखना है, तो क्या हो जाएगा, सबके बीच बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो ऑब्वियसली वहां पे काउंट कम हो जाएगा, राइट, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन दैट गिवन सेक्शन विल बी डिक्रीजिंग, तो सेक्शन अगर नंबर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब Yes. टाइम हेडवे को हम लोग इस ग्राफ में बोलेंगे ये वाला एक ट्राजेक्ट्री है, ये वाला दूसरा ट्राजेक्ट्री है, तो दोनों के बीच का टाइम देखो, एक्स एक्सिस में टाइम है तो दिस इज टाइम डिफरेंस, ये वाला है, तो टाइम हेडवे ये वाला है, गैप जो जो है, ठीक है, तो दीज आर द टाइम हेडवे। अब दूसरा तो स्पेसिंग हम बोले ही थे, ठीक है, तो स्पेसिंग का भी यही फॉर्मूला है, देखो डेंसिटी बाय 1000 बाय डेंसिटी, डेंसिटी क्या थे हम लोग का, व्हीकल पर किलोमीटर, और ये एच हेड स्पेस हेड में रहेगा तुम्हारा मीटर में, ठीक है, इसलिए ये पर किलोमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर 1000 चला गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस दे रहा है, दिस सिग्निफाइज द स्पेसिंग, ओके, वहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गैप था, वो था तुम्हारा टाइम हेडवे, तो ये सब हो गया है, ओके। Now, what is the relationship between volume, density and space? Speed. ठीक है, ये density है, ये speed है, ये volume है. So this is the formula. तुम लोग को कई सारा problem दिया रहता है using this formula only. Okay, speed दिया रहेगा या density दिया रहेगा तो बोलेगा volume निकालो, या बोलेगा तुमको headway दिया रहेगा, spacing दिया रहेगा, time headway, space headway सब दिया रहेगा, बोलेगा speed निकालो। देखो टाइम हेडवे दिया रहेगा मतलब क्या है, यू विल इजीली कैलकुलेट वॉल्यूम, क्योंकि टाइम के साथ ये टाइम हेडवे के साथ वॉल्यूम रिलेटेड है, ठीक है। स्पेस हेडवे दिया रहेगा मतलब डेंसिटी इज अगेन रिलेटेड टू स्पेस हेडवे, तो डेंसिटी भी निकल आएगा, ओके। तो v पता है, d पता है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्पीड यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू स्पीड, ओके। वॉल्यूम का है व्हीकल पर आवर, डेंसिटी है व्हीकल पर किलोमीटर, स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, क्लियर। नाउ लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल, ओके। बोला है कि ट्रैफिक इन एन इंटरस्टेट एट 7:15 AM इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पेसिंग ऑफ 25 मीटर एंड एवरेज हेडवे ऑफ 3 सेकेंड। तो देखो एस्टिमेट क्या क्या करने के लिए बोला, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड निकालो, तो तुमको क्या क्या दिया है, दिस इज दी h सफिक्स s, ठीक है, स्पेसिंग है, दिस इज हेडवे है, मतलब टाइम हेडवे है इतना, ठीक है। तो बोला गया है वॉल्यूम, डेंसिटी और स्पीड निकालो, ओके। ht is 3 सेकेंड, hs is 25 सेकेंड। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम हेडवे एंड वॉल्यूम, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कितना आएगा बोलो, वॉल्यूम का क्या था फॉर्मूला, हेडवे और वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है डेंसिटी और स्पेस हेडवे का रिलेशनशिप, ठीक है,
किलोमीटर है, ये वाला मीटर में है, इसलिए 1000 आएगा, ये याद रखना। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा ये है सेकेंड में है, ये वाला आवर में, इसलिए 3600 आ रहा है, मतलब 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट करके बोलो तो हमको कितना आएगा वॉल्यूम, पहला फॉर्मूला से ये दे दिया है। तो दीज आर द डाटा गिवन टू यू। कितना आ रहा है वॉल्यूम, दिस इज द रिलेशनशिप, एच टी इक्वल टू था 3600 बाय वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम कैलकुलेट करो, एच टी दिया है तुमको, तो कितना आएगा वॉल्यूम। हेलो हेलो मैम 1200। यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट, यस आंसर इज 1200, बट यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, volume is what, number of vehicles crossing a given section, okay, in a given duration of the time, मतलब पर टाइम में कितना व्हीकल क्रॉस करेगा, राइट। सो व्हीकल पर आवर, ओके, इज द वॉल्यूम का यूनिट। सो व्हीकल पर आवर पर लेन लेना है, मतलब हम लोग एक ही लेन का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली फाइंड कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी कितना आएगा, डेंसिटी का भी फॉर्मूला क्या था, ये वाला था, राइट। डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1000 बाय एच एस, एच एस इज गिवन 25, ठीक है, मतलब दीज आर अगेन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कितना आएगा डेंसिटी, एंड ऑल्सो टेल मी द यूनिट। तुम इसको इतना टफ से मत करो, इतना टफली मत करो। देखो वॉल्यूम हम लोग किससे, ये वाला फ्लूइड वी आर कंसिडरिंग, वी आर कंपेयरिंग द ट्रैफिक स्ट्रीम एज अ फ्लूइड, राइट। तो ये जो फ्लो है, फ्लो का मतलब है डिस्चार्ज, राइट। तुम लोग जो पढ़ चुके हो फ्लूइड मैकेनिक्स में, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का यूनिट क्या है, लीटर पर सेकेंड है, राइट। तो यहाँ भी वैसे, अब लीटर तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, व्हीकल्स है, तो इसीलिए व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। वहां पे भी देखो डेंसिटी था, राइट। डेंसिटी में क्या आता है, तुम लोग का क्या बोलते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, कंसेंट्रेशन, मतलब कि एक सर्टेन स्पेस में कितना सारा मास है, राइट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्पेस आएगा। तो कितना, अब मास तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स है, सो नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, इन अ गिवन स्पेस, राइट। सो दैट इज द व्हीकल पर किलोमीटर, ओके। तो डेंसिटी का ये यूनिट है, व्हीकल पर किलोमीटर। कितना आ रहा है डेंसिटी, बोलो, चुप क्या ना, इसमें कर रहे हैं 40 vehicle per 40. kilometer Yes. per lane. See, now you got volume, you got density. Yes. Now simply calculate the speed. ठीक है, स्पीड का क्या था फॉर्मूला, इन तीनों का रिलेशन क्या था, वॉल्यूम और फ्लो, वॉल्यूम या फ्लो, ओके, वॉल्यूम और फ्लो इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू स्पीड। तो स्पीड विल बी वॉल्यूम बाय डेंसिटी। देखो वॉल्यूम का यूनिट है व्हीकल पर आवर, बाय डेंसिटी का यूनिट होगा व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है। तो व्हीकल व्हीकल कट जाएगा, ये पर नीचे किलोमीटर था, मतलब ऊपर चला जाएगा, और ये वाला आवर नीचे रहेगा, सो किलोमीटर पर आवर विल बी द यूनिट। स्पीड आएगा तुम्हारा v बाई डी, यस मैम। तो कितना आएगा, v है तुम्हारा इतना, d है इतना, वॉल्यूम बाय डेंसिटी। थर्टी किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ऐसे आ सकता है, तुमको कई बार क्वेश्चन में एमसीक्यूज में दे सकता है कि वॉल्यूम डेंसिटी दिया, बोलेगा स्पीड निकालो, या वॉल्यूम डेंसिटी डायरेक्टली नहीं देगा, ऐसा दे देगा, ठीक है। तो बोलेगा वॉल्यूम निकालो, डेंसिटी निकालो, स्पीड निकालो, ओके। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं, मतलब तुमको ये वाला थोड़ा बेसिक है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। दिमाग को थोड़ा प्रेशर, मतलब थोड़ा शांत करके ये समझेंगे हम लोग कि क्या क्या है, ये डायग्राम कैसे आ रहा है, ओके।
तो दिस डायग्राम इज द फंडामेंटल ट्रैफिक फ्लो थ्योरी डायग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग। ओके, फंडामेंटल ट्रैफिक फ्लो थ्योरी डायग्राम ये वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन में तुम लोग को इसको समझाने के लिए भी बोला जाएगा कि ये वाला जो भी है डायग्राम पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, अब बोलेगा कि इसको समझाओ। अब बोला गया है कि डेंसिटी एंड स्पीड, फर्स्ट डायग्राम हमको ये वाला डिराइव किया गया है। ओके, मतलब वी हैव फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड द स्पीड, ठीक है। मतलब ये वाला बेसिकली क्या हो जाता है तुम्हारा, हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल भी बोल सकते हैं, मतलब कि ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके दोनों के बीच का रिलेशन हम लोगों ने एक डिराइव किया है कि क्या रिलेशन है इन लोगों का। अब ये वाला देखकर क्या लग रहा है तुमको, दिस इज व्हाट, नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप। ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इस तरफ है एक्स एक्सिस में डेंसिटी, वाई एक्सिस में स्पीड, ठीक है। तो ये वाला स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बोलो पहले। पॉजिटिव अगर होता तो कैसा होता, कहां से होता, इस तरफ से होना चाहिए था ना। पॉजिटिव अगर होता तो स्लोप यहाँ से जीरो से, जैसे ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ेगा, वैसे ही इसीलिए लाइन ऐसा होना चाहिए। लेकिन दिस इज अ नेगेटिव स्लोप विच सिग्निफाइज दैट दोनों क्या है, दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो स्पीड रिड्यूस होगा। ओके, अब तुम लोग एग्जाम्पल ही ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो। देखो सपोज यहाँ पे तुम्हारा जीरो है डेंसिटी, मतलब क्या है कि एक गिवन स्पेस में कोई गाड़ी नहीं है, या सिर्फ तुम अकेले हो, ओनली यू आर ओनली द व्हीकल, तुम्हारे आगे भी कोई गाड़ी नहीं है पीछे भी कोई गाड़ी नहीं है। मतलब डेंसिटी क्या है, 1 किलोमीटर स्ट्रेच में कोई भी गाड़ी नहीं है तुमको छोड़ के, तो डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, वहां पे जीरो के बराबर है, ठीक है। मतलब व्हीकल पर किलोमीटर है ना, डेंसिटी का मतलब यही तो है, 1 किलोमीटर स्ट्रेच में कितना व्हीकल्स रहेगा, ठीक है। तो वहां पे कोई व्हीकल है ही नहीं तुम्हारे अलावा, सो डेंसिटी हम लोग बोल रहे कि वहां पे तब जीरो डेंसिटी है। तो तब तुम्हारा स्पीड कैसा होगा बोलो, मतलब तुम्हारे अगल बगल कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तुम अकेले ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा स्पीड कैसा होगा, ज्यादा होगा ना कम होगा, कम कम होगा। तुम खुद ही बोलो, तुम बाइक लेकर जा रहे हो, तुम्हारे अगल बगल में कुछ नहीं है, ठीक है, स्पीड तो ज्यादा ही होगा उसके हिसाब से। हाँ तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो व्हेन डेंसिटी एक्स एक्सिस जब जीरो है, वाई एक्सिस कहाँ पे है, ये वाला लाइन ऐसा है, दिस इज द रिलेशनशिप, मतलब यही रिलेशन है तुम्हारा स्पीड वर्सेस डेंसिटी का, ठीक है। अब देखो ये वाला लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला का कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा x इक्वल्स टू 0 में y इक्वल्स टू है SF, तभी हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट मिलेगा मतलब क्या है, व्हेन योर, अगर बोलेगा ये वाला पॉइंट ड्रॉ करो तो क्या करेंगे, d का वैल्यू 0 रखेंगे, और सपोज x एक्सिस में ये 0 है, y एक्सिस में SF आ रहा है, तो यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि व्हेन योर डेंसिटी इज 0 स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड ये है, देखो सबसे ज्यादा स्पीड, स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, सॉरी स्पीड इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, मतलब 0 से S0 हुआ फिर SF हुआ, राइट, डेंसिटी इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन योर डेंसिटी इज 0 स्पीड इज मैक्सिमम, देख रहे हो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो and that speed is known as the free flow speed, okay, that is called the free flow speed, इसीलिए देखो S suffix F किया है, S suffix F, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली तुम्हारे अगल बगल में अब गाड़ी आ रहा है, मतलब 1 किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर एक दो गाड़ी अब बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब वी आर गोइंग दिस साइड, ओके, ये वाला डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, मतलब ये डेंसिटी अब बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ रहा है तो देखो ये वाला लाइन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्पीड था इस वाले पॉइंट में क्या होगा, स्पीड यहाँ पे होगा समवेयर विच इज लेसर देन SF, ठीक है। तो ये वाला क्या हो रहा है, स्पीड देखो अब स्पीड कमता जा रहा है, कमता जा रहा है, राइट। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर बोलेगा ये वाला कोऑर्डिनेट का स्पीड निकालो तो क्या होगा, इस तरफ आएगा ये वाला कोऑर्डिनेट का स्पीड विच इज ऑब्वियसली लेसर देन द SF, ठीक है। तुम खुद ही बोलो, तुम्हारा पहले खाली था, तुम फ्रीली चला रहे थे, अब आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, तुम्हारे अगल बगल में गाड़ी आना स्टार्ट कर रहा है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली स्पीड तुम कम करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो योर स्पीड विल स्टार्ट टू रिड्यूस,
ठीक है, रिड्यूस कर रहा है। अब देखो ये वाला कौन सा है, ये वाला है मैक्सिमम डेंसिटी पहुंच गया, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी मतलब है कि बहुत ज्यादा भीड़ होगा चढ़ियाल में सपोज, और 1 किलोमीटर रास्ते में बैक टू बैक बहुत सारा व्हीकल्स वहां पे खड़ा है जैम कंडीशन में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन अ गिवन स्ट्रेच ऑफ रोड। सो दिस डेंसिटी विल गिव यू द जैम डेंसिटी। अब चढ़ियाल में जाके तुम्हारा स्पीड क्या हो जाता है मैक्सिमम टाइम, क्या करते हो गाड़ी को स्लो करते हो या स्टॉप हो जाता है, राइट। तो व्हेन द डेंसिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम पोजीशन, मतलब जैम कंडीशन में आता है, तो मतलब तुमको रुकना पड़ता है, योर स्पीड इज रिड्यूस टू 0। तो इस वाले कोऑर्डिनेट में देखो, हाँ इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है देखो, जैम डेंसिटी डी इज डीजे, ठीक है, मतलब वो है तुम्हारा जैम डेंसिटी और स्पीड इज 0, ठीक है। तो यही हो रहा है, मतलब when d equals to 0 है तुम्हारा स्पीड विल बी मैक्सिमम, और when d equals to जैम कंडीशन या मैक्सिमम डेंसिटी जब होता है, इसको बोलते हैं जैम डेंसिटी, ओके। तो तुम्हारा s या स्पीड विल बी 0। सो ये वाला क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है स्पीड घट रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है स्पीड घट रहा है, इसलिए दिस इज नेगेटिव स्लोप, ओके। तो इस वाले से हम लोगों ने बाकी रिलेशन मतलब क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ पैरामीटर तीन है, स्पीड है डेंसिटी है, इसमें तो सिर्फ 2 है। अब हमको बाकी और एक है ना फ्लो है, तो उनके साथ भी डेंसिटी का क्या रिलेशन है और फ्लो के साथ स्पीड का क्या रिलेशन है, वो भी हमको डिराइव करना है यूजिंग दिस वन ओनली, ओके। ये वाला हम कल, अच्छा कितना टाइम हुआ, अभी टाइम है 4 मिनट है 46। ओके अच्छा ठीक है। इससे रिलेटेड ये वाला हम कल बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन करता है, ओके। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखो कैसा है ये वाला। अब ये वाला देखकर हमको बोलो क्वेश्चन आंसर क्या चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन, मतलब ये जो है स्पीड और डिस्टेंसिटी का रिलेशन, सी यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, अगेन दिस स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। अगर ये प्लस होता तो उस तरफ होता, लेकिन ये नेगेटिव मतलब है ये वाला स्लोप है, ये स्लोप इज नेगेटिव, मतलब ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। अब बोलो इस रिलेशन से मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अगर ये रिलेशन है, ठीक है, मतलब स्पीड और डेंसिटी के बीच का एक इक्वेशन रिलेशन हम डिराइव किए हैं। सपोज ये इक्वेशन विल शो द गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड द स्पीड, ओके। नाउ टेल मी, यहां से हमको कितना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड एसएफ चाहिए, एसएफ का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अगर ये लाइन का ही अगर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला दिया गया है, इक्वेशन दिया है, दिस इज द इक्वेशन 60 माइनस 0.43 डी, ओके। अब तुमको बोला गया है एसएफ निकालो, तो कितना आएगा, एसएफ का वैल्यू कितना किलोमीटर पर आवर। एसएफ कब हो रहा है पहले बोलो, एसएफ का वैल्यू कब हम लोग निकाल पा रहे हैं, जब डी इक्वल्स टू कब हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी व्हेन योर एस इज इक्वल्स टू एसएफ। एस इज इक्वल्स टू है तुम्हारा ये वाला, ये लाइन का रिलेशन, ठीक है, 60 माइनस 0.43 डी, ठीक है। अब बोला गया है इस रिलेशन से तुमको एस एफ निकालो, मतलब एस एफ का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पहले ये बोलो एस एफ का वैल्यू व्हेन इज योर एस इक्वल्स टू एस एफ, तब डी इक्वल्स टू क्या होता है, जब s का वैल्यू sf होगा तो d का वैल्यू क्या हो रहा है, ये डायग्राम से क्या लग रहा है, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे तो sf का वैल्यू sf है, इस वाला ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है बोलो, इसका कोऑर्डिनेट का x एक्सिस कितना है। अगर ये कोऑर्डिनेट तुमको प्लॉट करने के लिए बोला गया तो x एक्सिस कितना होगा यहाँ पे, कोई भी पॉइंट का, सपोज ये वाला पॉइंट दिया गया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट का तुमको बोला है कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है।
मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा, तो एब्सिसा क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक है तुम्हारा d0, ठीक है, और इस वाले का y वैल्यू कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है सपोज s0, तो इसका ऑर्डिनेट कितना है d0, s0, ठीक है। अब सिमिलरली ये वाला ऑर्डिनेट का क्या होगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यहाँ पे d इक्वल टू कितना है, हेलो D1, जीरो D1, एस एफ, D1, 0 SF, यस 0, d का वैल्यू Comma मतलब SF. देखो d कहाँ पे, इसका d है तुम्हारा 0, ठीक है, और s तो ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे y एक्सिस तो SF ही है, तो x एक्सिस इज 0, y एक्सिस इज SF, ठीक है, तो Yes, ma'am. तुम्हारा SF निकालने के लिए d का वैल्यू कितना Yes. होना चाहिए था, SF निकालने के लिए d का वैल्यू कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था ना, जीरो so जीरो when Yes, ma'am. हाँ, so when your density is 0, your speed is maximum, हम तो बोल ही चुके हैं, जब डेंसिटी कोई नहीं अगर बगल में तो स्पीड ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा, तो तुमको मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए पूछा गया है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस योर फॉर गेटिंग SF वी हैव टू टेक दिस वैल्यू एज 0, तो अगर ये वैल्यू 0 रहेगा तो SF का वैल्यू कितना आ रहा है 60, 60. right, so your maximum speed will be 60 km/h, क्लियर है, सिंपल, देखो कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल है, लेकिन इसका ही तुमको गेट में आ गया क्वेश्चन, ओके ठीक है, फिर इतना दूरी करेंगे आज। अच्छा एक क्वेश्चन भी देख लो इधर, ठीक है, डिफाइन टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, ये वाला तुम्हारा उसमें आ रहा है सेमेस्टर में, ओके कैसा आ रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन स्पेस मीन स्पीड, टाइम मीन स्पीड निकालने के लिए बोला गया है, जो हम लोग कल किए थे, राइट, और अगले क्लास में किए थे, पिछले क्लास में, और यहाँ पे देखो PHF से रिलेटेड आ रहा है कि अगर PHF का वैल्यू 0.85 है और एक का लोकेशन में दूसरा लोकेशन में 0.6 है, तो किस में तुम्हारा दोनों का ट्रैफिक कंडीशन क्या होगा, मतलब यूनिफॉर्मिटी पूछ रहा है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ट्रैफिक, जितना टुवर्ड्स 1 जाएगा PHF का वैल्यू उतना यूनिफॉर्म होगा, जितना टुवर्ड्स 0.25 जाएगा PHF का वैल्यू उतना ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एवरी 15 मिनट्स इंटरवल में तुम्हारा सेम ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा, यूनिफॉर्म कंडीशन, ओके ठीक है, तो फिर इतना ही करते हैं, ओके वेट आई विल टेक द अटेंडेंस, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, थैंक यू, इतना ही करते हैं, ओके आई विल एक्सप्लेन दैट लास्ट टॉपिक, थैंक यू मैम। वेलकम।